कितनी देर और हैं? Aren't we getting late? ठीक से चलना। जिन लोगों ने मुझे लेसन दिया चलने का। अच्छा। और म्यूजिक चेंज हो जाएगा तो मजा आएगा। ओए, don't ever. She is. देखिए बाबा जी, कितनी खूबसूरत लग रही है। माशाल्लाह। बाबा, दूल्हे मियां तो फीके पड़ जाएंगे हमारी बहन के सामने। अल्लाह नजर बद से बचाए। आओ बच्चों। अच्छा। प्रिया, आ रही हूँ। उसे तैयार करो, मैं आ रही हूँ। क्यों भाई विधि तैयार नहीं हुई? नहीं, बस अभी तैयार हूँ। और तू? हो रही हूँ, अभी जा। पापा, आप चाहे कहीं भी हो, आप मुझे देख सकते हैं, मैं भी आपको देख सकती हूँ, आपके प्रेजेंस को फील कर सकती हूँ। Bless me, Papa, and let your blessings always be the light of my life.
My dear friends, I welcome you. You have come together in this church so that the Lord may seal and strengthen your love in the presence of the church minister and this community. Christ abundantly blesses this love. He has already consecrated you in baptism, and now He enriches and strengthens you by a special sacrament so that you may assume the duties of marriage in mutual and lasting fidelity. And so, in the presence of the church, I ask you to state your intentions. Ashley and Sharon, since it is your intention to enter into marriage, join your right hands and declare your consent before God and His church. Say after me now. Ashley. I, Ashley, I, Ashley, take you, Sharon, to be my wife. to be my wife. I promise to be true I promise to be true to you in good times in good times and in bad times, and in bad times, in sickness in sickness and in health. and in health. I will love you I will love you and honor you and honor you all the days of my life. all the days of my life. Sharon, please say after me. I, Sharon, I, Sharon, take you, Ashley, take you, Ashley, to be my husband. to be my husband. I promise to be true to you I promise to be true to you in good times in good times and in bad times, and in bad times, in sickness in sickness and in health. and in health. I will love you I will love you and honor you and honor you all the days of my life. all the days of my life. Dear friends, you have declared your consent before the church. May the Lord in His goodness strengthen your consent and fill you both with His blessings. What God has joined, men must not divide. Ring, please. May the Lord bless these rings which you give to each other as a sign of your love and fidelity. Amen. Say after me. Sharon, Sharon, take this ring take this ring as a sign of my love as a sign of my love and fidelity. and fidelity. In the name of the Father, In the name of the Father, and of the Son, and of the Son, and of the Holy Spirit. and of the Holy Spirit. Sharon, say after me. Ashley, Ashley, take this ring take this ring as a sign of my love as a sign of my love and fidelity. and fidelity. In the name of the Father, In the name of the Father, and of the Son, and of the Son, and of the Holy Spirit. and of the Holy Spirit. Hello. May I speak to Mr. Karan Khanna, please? हाँ जी बोल रहा हूँ। आपका परिचय? मेरा परिचय रहने दीजिए। मेरे पास आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, बस वो सुन लीजिए। सुनाइए। आपके एक दोस्त हुआ करते थे, मिस्टर दीनानाथ, जो सुप्रीम शुगर फैक्ट्री के मालिक हैं। हाँ जी, he is a very old friend of mine. Yes, I know him. तो आप ये भी जानते होंगे कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। हाँ जी बिल्कुल मालूम है। मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से उन्हें मिल नहीं सका, लेकिन मैंने उन्हें खत भेजा था। कैसा उनका बेटा? अभी उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। आप जानते हैं ना कि उसका एक्सीडेंट हुआ था लोला इंटरनेशनल के अंडर कंस्ट्रक्शन होटल में। उसकी दीवार उन पर गिर गई थी। जी हाँ, मैंने दीनानाथ जी को कहा था कि लोला इंटरनेशनल पर केस दायर कर दें, और मेरा ख्याल उन्होंने उस पर केस किया भी था। जी हाँ, किया था। जी हाँ बिल्कुल, उन्हें लोला से पूरा पूरा हर्जाना मिलना चाहिए, बल्कि लोला को पूरी सजा होनी चाहिए इस बात की। आखिर उनके बेटे की जिंदगी का सवाल है। मिस्टर दीनानाथ ऐसा ही करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें ऐसे करने से रोक दिया और उन्होंने मेरा कहना मान लिया। आपका? कौन बोल रही हैं आप?
मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि मिस्टर दीनानाथ ने मेरे होटल के अगेंस्ट जो केस फाइल किया था वो वापस ले लिया है। बाय द वे, मैं लोला बोल रही हूँ। गुड डे मिस्टर खन्ना। लेकिन दीनानाथ जी ने ऐसा क्यों किया? उनके जीत जाने के पूरे चांसेस थे बाबा। लोला हर तरह से कानून की गिरफ्त में थी। अली, पहले इस खबर को कंफर्म तो कर लो कि ये सही है या गलत है। हो सकता है लोला झूठ बोल रही हो। नहीं वर्मा जी, लोला सही बोल रही थी, लेकिन मुझे हैरत तो दीनानाथ जी पे हो रही है। उनके बेटे की तबीयत इतनी खराब है, फिर भी ऐसे नाजुक मामले में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कैसे कर लिया? बाबा क्यों ना एक दफा दीनानाथ जी से बात कर ली जाए? नो नो, मैं इस बात का मशवरा नहीं दूंगा। मिस्टर खन्ना, हमारे सामने और भी प्रॉब्लम्स हैं जो ज्यादा अहम हैं। हमें प्रायोरिटीज का ध्यान रखना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं वर्मा जी। लोला हमारी जिंदगी से जितनी जल्दी निकल जाए उतना ही बेहतर। बाबा आपको लोला से तो जिंदगी भर छुटकारा नहीं मिल सकता। वो आशु की मां जो है। वो तो सही है, लेकिन जिस हद तक मुमकिन है उसे घर से दूर तो रखा जा सकता है। जी हाँ, बस वो 10 करोड़ रुपयों का मसला हल हो जाए जो अदालत में जमा है। उसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि लोला से फिर कभी मुलाकात नहीं। वो मसला भी चंद दिनों में हल हो जाएगा। मिस्टर खन्ना, मैंने जो फैक्ट्स जमा किए हैं वो एविडेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ कल कोर्ट में जमा करने हैं। और बस अब अदालत को अपना फैसला सुनाने में कितना वक्त लग सकता है? इट डिपेंड्स। हमने जो फैक्ट्स प्रूव किए हैं, अगर लोला उन्हें डिसप्रूव करने की कोशिश करती है तो हो सकता है कुछ वक्त लग जाए, और अगर वो कुछ नहीं करती तो ये फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा। वर्मा जी, मैं किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूं? आपने कितनी जल्दी लोला इंटरनेशनल के खिलाफ सबूत जमा कर लिए। मुझे ऐसी कामयाबी की उम्मीद कम ही थी। खन्ना साहब, इस सब का क्रेडिट अली को जाता है। अगर इसने लोला के ऑफिस में रहते हुए पूरे कागजात का जेरोक्स नहीं किया होता तो हमारा काम रुक जाता। आज वही कागजात हमारे काम आए। वर्मा जी, अली तो मेरे लिए भगवान का भेजा हुआ एक अनमोल तोहफा है, और आपका साया मेरे लिए खुदा की रहमत है। ये छोटी मोटी खिदमत कोई मायने नहीं रखती बाबा। असली खिदमत का मौका तो है। अच्छा, जरा हम भी तो सुने तुम्हारे दिल में क्या है। हे बाबा, जब खुदा वो मौका देगा तब आप खुद ही देख लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। What's the time? It's 10 o'clock. Oh shit. I have to rush. Okay. Bye. Bye. See you. See you. हेलो, हम जैक से बात कर सकते हैं? हम मुंबई से बात करते हैं। साहब जी, आपको मुंबई से फोन है। हेलो, जैक, कौन बोल रहा है? आई एम सुजन्स मदर स्पीकिंग। इट्स वेरी अर्जेंट। हाँ आंटी बोलिए। जैक, एक बुरी खबर है। सुजन का एक्सीडेंट हो गया है। तुम फौरन मुंबई चले आओ। एक्सीडेंट? सुजन कहाँ है? सुजन हॉस्पिटल में है। उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। उसको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गया है। ऑपरेशन करने को पड़ेगा। मैं पहली फ्लाइट से बॉम्बे आ रहा हूँ। हॉस्पिटल कौन सा? गुप्ता हॉस्पिटल में, रूम नंबर 450। कब है ऑपरेशन? कल सुबह, लेकिन
जैक, हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। ऑपरेशन का वास्ते 2 लाख रुपए का जरूरत है। अभी हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है। मैं पैसे लेके आ रहा हूँ, आप ऑपरेशन शुरू करवा दीजिए। मैं आई एम कमिंग एंड सुरन से कह दीजिए कि मैं पहुंच रहा हूँ। ओके सर, गॉड ब्लेस यू। जैक, what happened, जैक? पैसे चाहिए। किस लिए बेटा? क्या? सुजन, एक्सीडेंट हो गया सुजन का। 2 लाख रुपए चाहिए, कैश चाहिए माँ। बेटा मेरे पास अभी तो क्या? हाँ, मैं कैश दे दूंगी कल सुबह। अभी कैश चाहिए, अभी चाहिए। बैंक खुलते ही दे दूंगी। अभी चाहिए 2 लाख कैश। रिलैक्स बेटा। कैश चाहिए, कैश चाहिए, 2 लाख कैश चाहिए। सुजन, कैश चाहिए। बेटा रिलैक्स। वो सुजन का एक्सीडेंट हो गया है और जैक को पैसे चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? मेरे पास कैश नहीं है 2 लाख। अरे तो सेफ में पड़ा है ना मेरे पास। आओ आओ। ऑपरेशन चलता है। ये कहाँ जमा करना है? रिसेप्शन पर। पेशेंट का नाम बता देना और डॉक्टर का नाम रंगनाथन है। वो क्या कहते हैं, ये ठीक हो जाएगी? अभी कुछ कहने को नहीं सकता क्योंकि उसका बहुत ज्यादा फ्रैक्चर है और कई बार ऑपरेशन करने को मांगता है। Pray to God, son. Ask for his mercy. इतना जास्ती टेंशन लेने को नहीं मांगता। ऐसा नहीं तुमको कुछ हो जाएगा तो? हम ऐसा खबर तुमको नहीं बताता तो अच्छा रहता, लेकिन हमारा भी मजबूरी रहता। That's okay. आप क्यों गिल्टी फील कर रही हैं? तो समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ है मेरी और सूजन की किस्मत में। पहले मैं और चलेगी, चल पाएगी, चल पाएगी। Have faith in God, son. वो जरूर चलेगा। कब तक चलेगा ऑपरेशन? कब होश आएगा? कब होश आएगा? Be peaceful, be calm, son, and pray. Pray to God. Pray. बेटा वो बात करेगी। चलो मैं कहाँ बोल रही है? वो बात करेगी। सुन से नहीं बोल रही है। ओके बात करेगी। कब करेगी बात तुमसे? उसको वो करेगी बात। अभी जस्ट हैव सम पेशेंस। घबराने की बात नहीं है बेटा। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है। तो फिर अब तक अनकॉन्शियस क्यों है? हैव पेशेंस बेटा, वो होश में आ जाएगी। आपने पूछा डॉक्टर से कब तक चल पाएगी? बेटा वक्त पर सब कुछ हो जाएगा, धीरज रखो।